student. Today we will study figures of speech. Figure of speech means alankar. It is used to make greater effect of about what we are saying. There are so many figures of speech in a course, but we will study that is simile, metaphor, personification, apostrophe, oxymoron, onomatopoeia, and hyperbole. So first you see simile. What is simile? In simile, a comparison is made between two objects of different kind which has at least one point in common. The simile is introduced by the words as is, like, so etc. So we can see here in a simile comparison is made. Comparison means tulna. We have to make comparison between two objects of different kind. दो अलग अलग चीज के बीच में हम तुलना करते हैं जिनमें कम से कम कोई एक गुण समान हो. So we have to compare two different things in which there is at least one point in common. Just like, see the example, she is lovely like a rose. So here the quality lovely is compared between her and rose. Both are lovely. So it is used here as a simile. She is lovely like a rose. He fought as bravely as lion. So here quality of braveness, bravery. ये जो bravery है, lion भी brave है और उसने लड़ा भी bravely है. So that is a comparison between two different objects but have at least one point in common. कम से कम कोई एक गुण इसमें समान है. दो अलग अलग चीज के बीच में तुलना की जाती है जिसमें कम से कम कोई एक गुण समान है. Now next, metaphor. What is metaphor? Metaphor is an implied simile. ये इसका हम मान लेते हैं, तुलना नहीं करते हैं, जिस चीज से तुलना करते हैं उसको हम assume कर लेते हैं. ठीक है ना? So it does not like a simile state that one thing is like another or as another, but takes that for granted and proceeds as if two things were one. means दो चीजों के बीच में हम तुलना नहीं करेंगे, एक चीज को हम दूसरी चीज मान लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम. जो डिफरेंसेस यही है यहाँ पे होता है. अगर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम देन इट विल बिकम सिम्ले. इफ यू आर सेइंग लाइफ इज अ ड्रीम देन इट इज मेटाफोर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट. वो फाइट में कैसा रहा? लॉयन के जैसा रहा. और सेम सेंटेंस यहाँ भी है, अलग तरीके से कहा गया. ही फॉट एज ब्रेवली एज लॉयन देन इट इज सिम्ले. And if we say he was a lion in the fight, then it is metaphor. Now, personification. In personification, lifeless objects and abstract ideas are spoken of as having life and intelligence. Means यहाँ पे हम lifeless objects को और abstract ideas को ऐसा ट्रीट करेंगे कि उसके अंदर life है. Means निर्जीव चीज को हम सजीव मान करके उसकी बात करेंगे. जैसे Death lays his icy hands on kings. मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं पे डाला. Anxiety is sitting on her face. Anxiety means worry, चिंता उसके फेस पे क्या बैठी है? Just using like a person. Love is blind. Love is not a person but it is blind. यहाँ पे हम बोला जा रहा है love is blind. इसको personify किया गया है love को. So it is personification. Now next, apostrophe. In apostrophe, what we do? See the example here. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or ideas. In personification, in apostrophe, we make a direct address. means हम सीधा संबोधन करते हैं to the dead, टू द एब्सेंट जो हमारे सामने नहीं है, या किसी मृत व्यक्ति को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हम सीधे संबोधित करते हुए एड्रेस डायरेक्टली टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर. लिबर्टी मीन्स आजादी. तुम इतनी प्रिय क्यों हो? ट्रीटिंग जस्ट लाइक वी आर एड्रेसिंग हियर टू द लिबर्टी. Next, O death, where is thy sting? Die means your, sting means do.
मीन्स ओ मृत्यु तुम्हारी डोर किधर, यहाँ पे भी हम मृत्यु को डायरेक्ट एड्रेस करें, सो इट इज apostrophe. Now oxymoron. Oxymoron. In this figure of speech, two opposite qualities are added to the same thing. दो opposite बातें हम एक ही चीज में कहेंगे. For example, he is regularly irregular. Here, irregular is opposite of regular. दो opposite चीजें हम एक साथ कह रहे हैं, वह नियमित रूप से अनियमित है. And second, दिस इज एन ओपन सीक्रेट. एक ही बात में दो अपोजिट बातें कह रहे हैं कि सेंटेंस में हम दो अपोजिट बातें कह रहे हैं एक ही चीज के लिए. दिस इज एन ओपन, अपोजिट ऑफ ओपन इज सीक्रेट. ये ओपन सीक्रेट है. नेक्स्ट इज हाइपरबोल, अतिशयोक्ति. वी कैन से इट इन हिंदी. इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर. मीन्स किसी चीज को हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन करते हैं, या बहुत अधिक बढ़ा के या बहुत अधिक घटा के जितना वो एक्चुअली रहता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर. ओशंस मीन्स महासागर, टीयर्स मीन्स आंसू. सो हियर इट इज हाइपरबोल. शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर. रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल. मीन्स रिवर ऑफ ब्लड मीन्स खून की नदियां बह गई मैदान में, युद्ध के मैदान में. तो यहाँ पे खून की नदियां नहीं बहती हैं, लेकिन अपने बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. सो वी कैन से हियर टू मेक द सेंटेंस मोर इफेक्टिव, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल. एंड लास्ट इज ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग. मीन्स किसी चीज के साउंड को देख करके हम जान जाएंगे कि वो किस चीज का है या क्या चीज है. The cat mews, the snakes are hissing. किसी भी चीज का bees are buzzing. इस वजह से किसी भी चीज की जो साउंड है वही मीनिंग को सजेस्ट करेगा. So here we can study here 7 figures of speech: simile, metaphor, apostrophe, oxymoron, hyperbole, and onomatopoeia to make our sentence more effective. Thank you.